Civics. Good morning to all. Good morning. Okay, take out English grammar book. Good morning, ma'am. English grammar book. Take out English grammar book. मैम पेज नंबर Wait, page number 60. Previous class में हम start किए थे else and or else. In this previous class, we started new chapter else and or else. The use of else and or else, है ना? And we read the table of the else and or else. और else and or else का हमें टेबल पढ़ा था कि somebody, someone, है ना? Every, somewhere, somewhere, everywhere, nowhere, ये सारा टेबल हमने पढ़ा है क्योंकि after these else can be used. Page number 50, 60. Page number 60. Open the page number 60. Okay? Wait. Everyone open the page number 60. Okay, can you tell me what is the meaning of the else? Can you tell me what is the meaning of the else? Else, Ma'am. yes, Other. else means other. Yes. Okay, chalo. So, else means other, है ना? So, give an example of else or and or else. Else and or else की एक example दो. Ma'am, like someone else. I like someone else. Okay, very good. Okay, Banya. Yes, ma'am. Everyone turn off your microphone. Everyone turn off your microphone. Everyone, microphone off karo. Vanya, tell the answer. Okay, ma'am. Can you give the answer or can you answer or else can answer? हाँ ये हुआ. Okay, Himani. I shall have to ask someone else. Yes. Okay, yes, B. Any else you do that? Any else you do that? Okay, very good. Honey. Was anyone else pocket picked? Okay, very good. Okay, next. Anyone? Yes, Sonam. It is not anyone else mischief. Okay. Okay, तो सबको पता है कि else is used instead of other, है ना? तो हम अगर कुछ और है ना, नहीं तो अन्यथा, वरना, अगर ऐसा वर्ड यूज करने जाओ तो ये हम else लगाएंगे, है ना? We use else if we use to if we want to use the else, है ना? तो देखो, तो tell me what is else in the parts of speech? Parts of speech में else क्या है? Have you any idea what is else? Else noun, pronoun, इनमें से क्या है? Ma'am, pronouns. Pronoun? No. देखो else adjective sorry. Okay, Riya.
एल्स कोई भी अदर चीज के लिए यूज हुआ जाता है। हाँ, तो else is an adjective, else use as an adjective की जैसा यूज होता है adjective, है ना, and also use an conjunction की जैसा भी यूज होता है कभी कभी, है ना, conjunction, और adverb, else also use as an adverb, okay, adverb के जैसा भी ये यूज होता है। देखो, तो ये जो टेबल है ये हम पढ़ चुके हैं ना, टेबल जो एल्स की टेबल है। देखो यहाँ पर टेबल क्या है, ये जो सारे टेबल है, नो वन, ये एल्स का टेबल है ना, ये जैसे हम मैथ का टेबल पढ़ते हैं ऐसे ही एल्स का भी एक टेबल है। तो इसके आफ्टर दिस वर्ड्स वी कैन यूज एल्स इंस्टेड ऑफ अदर, अदर की इंस्टेड में हम यूज करेंगे एल्स। ओके, देखो नेक्स्ट पेज में क्या है, व्हाट इज इन द नेक्स्ट पेज। देखो, here is some example, I shall have to ask some other person। देखो I shall क्या लिखा है यहाँ पे कि I shall have to ask some other person। देखो other है ना, अदर की इंस्टेड में हम लिखेंगे, है ना, तो अदर की इंस्टेड में हम क्या लिखेंगे, else एल्स तो लिखेंगे, लेकिन ये देखो टेबल पे क्या है, सम अदर पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, somebody else, है ना। देखो Yes, यही है ना, ma'am. सम अदर पर्सन है ना, सम Yes, अदर के लिए ma'am. हम इंस्टेड ऑफ Ma'am, सम other अदर पर्सन person. वी यूज someone else, we use, मतलब else अकेला नहीं यूज होता है, किसी के साथ यूज होता है। देखो someone else, somebody else, है ना, तो some other else, some other person की इंस्टेड में, तो someone else, somebody else, ये दो हम यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, है ना, ऐसा ही है ना। Yes, ma'am. Ma'am, ये other person का ना someone else हो गया. हाँ, देखो तो ऐसा ही हुआ ना कि I shall have to ask someone else, because some other else की instead of some other else we use some other person की instead में by removing some other person we use someone else, है ना। ये सेंटेंस भी अच्छा है, ये सेंटेंस भी सही है, ये कहीं गलत नहीं है, बट we use instead of other की इंस्टेड में, चेंज में हम यूज करेंगे someone else। देखो इतना बड़ा सेंटेंस ना बोलने के बाजू में हम क्या यूज किया, I have to ask someone else। देखो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, Chami, what happened? Chami, okay, Chami, what happened? Don't do this. Have you any doubt in this chapter? So you can tell me. Okay, Chami, don't do this. देखो तो is your family going to any other place? तुम्हारे फैमिली क्या कोई अन्य जगह में जा रहे हैं? देखो हम यूज करते हैं ना कि अन्यथा, है ना, कोई और ऐसा बोलने के लिए else यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसा ही लिखा है, is your family going to any other place? कहीं आपको फैमिली कहीं अदर प्लेस में जा रहे हैं घूमने,
तुम्हारे फैमिली क्या अन्य प्लेस में जा रहे घूमने, ये हम बोल रहे हैं। तो ये देखो, इज योर फैमिली गोइंग टू एनी अदर प्लेस, इसके ऑपोजिट में, इसके इंस्टीड में हम लिखेंगे वी यूज इंस्टीड ऑफ एनी अदर प्लेस। एनी अदर प्लेस के ऑपोजिट में Anyone else? Anywhere else? तो हाँ, एनीवेयर एल्स। देखो, तो डू यू हैव एन अम्ब्रेला, ये जो लिखा है ना आपके पास, तुम्हारे पास कोई अम्ब्रेला है, छतरी है तुम्हारे पास, ये बोलने के लिए इसने आंसर दिया। नो, यू शैल हैव टू आस्क समवन एल्स, नहीं मेरे पास तो नहीं है, कोई और को तुम्हें पूछना है, मेरे पास नहीं है। देखो ऐसा बोला कि नो, यू शैल हैव टू आस्क समवन एल्स, तुम्हें और दूसरा और कोई को पूछना है। यू शैल हैव टू आस्क समवन एल्स, तुम्हें कोई और को पूछना है ना। हम यूज करते हैं ना कुछ और, अन्यथा, अन्यथा, उसके बाद क्या होता है, वरना, ये सारे के लिए हम यूज करते हैं और, तो, है ना। जिसका माइक्रोफोन ऑन है वो ऑफ करो, किसका ऑन है? ओके, तो देखो, हियर इज द रूल, द पॉजिटिव केस ऑफ एल्स। पॉजिटिव मतलब हम किसी को ऑक्युपाई करके रखते हैं, पॉजिटिव मतलब ना, पॉजिटिव मतलब हम कोई एक प्लेस को दखल करके, मतलब उसके ऊपर हम अपना अपना जो पावर है वो दिखाने के लिए यूज करते हैं, है ना, अपना पावर। पॉजिटिव मतलब टू ओन समथिंग, ओन सेल्फ, टू ओन समथिंग, कोई खुद का है, ये ऐसा चीज को हम पॉजिटिव बोलते हैं। तो द पॉजिटिव केस ऑफ एल्स, एल्स का भी पॉजिटिव केस होता है। देखो, एल्स इज फेल टू फॉर्मली टाइड द वर्ड कमिंग बिफोर इट। एल्स ऐसा भी कोई सेंटेंस के साथ बहुत बंधन से, बहुत कठोर बंधन से टाई अप होता है, बंधा रहता है बंधन में। द वर्ड कमिंग बिफोर, जो पहले आता है ऐसा वर्ड से, क्यों? So to the correct positive from anyone else, देखो apostrophe s अगर हम लगा दिया else के, anyone, someone के पहले, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव केस हो जाएगा, है ना। साउंड अननेचुरल, ये anyone else sounds unnatural. The accepted form in current English is anyone else, but ये हम बोलते हैं, लेकिन current English is anyone else's, है ना। देखो, here is some example. I took someone else's hat. मैंने दूसरे कोई किसी का टोपी ले लिया। I took someone else's hat. ये जो किसी के ऊपर पॉजिटिव दिखा के ना, someone को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, someone else's, कोई किसी और को ले लिया मैंने, है ना। जो जोर पूर्वक हम बोलते हैं ना, कोई पावर दिखा के, देखो पावर दिखा के, to took someone, I took someone else hat, apostrophe s ये यूज हो, देखो apostrophe s, else, apostrophe s, है ना, इसको apostrophe s कहते हैं, हमें पता है। तो ये हम apostrophe s यूज करते हैं। देखो, पहले यूज किया, किसी जगह पर मैं नहीं किया, तो ये एग्जांपल है पॉजिटिव ऑफ else. Was anyone else pocket picked? Pocket pick मतलब पिक पॉकेट होता है। This word is pick pocket. पिक पॉकेट मतलब जो पॉकेट से चुरा लेता है ना कोई सामान, पॉकेट से चुरा लेते हैं ना कोई पॉकेट चोरी करते हैं पॉकेट से, तो इसको पिक पॉकेट बोलते हैं। अगर तुम बस में या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल किया, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कोई जो चोरी करते हैं, ऐसा चोर वगैरह रहते हैं ना, तो पिक पॉकेट कर लेते हैं, वॉलेट से पैसा चुरा लेते हैं और वॉलेट चुरा के पूरा वॉलेट ही ले लेते हैं, तो इसको पिक पॉकेट बोलते हैं। देखो, तो पिक पॉकेट, was anyone pick pockets, किसका माइक्रोफोन ऑन है? Everyone turn off your microphone. Ria, mute your microphone. Ria.
ओके तो देखो, तो क्या होता है ऐसा कि नो पिक पॉकेट वाज एनीवन्स एल्स पिक पॉकेट पॉकेट पिक, किसी कोई और का क्या पॉकेट चुरा गया है। सबने नोटबुक ओपन किया, किसी ने किया नोटबुक ओपन? यस मैम, मैंने किया है। एवरीवन नोटबुक ओपन करके जो भी डाउट है वो लिखो और प्रैक्टिस करो लिख लिख के। ओके देखो, तो यहाँ पे देखो, नो वन एल्स पेरेंट वर इनवाइटेड, कोई किसी का पेरेंट भी यहाँ पे इनवाइटेड नहीं है, निमंत्रित नहीं है। नो वन एल्स, देखो यहाँ पे नो वन को पॉजिटिव कर रहा है कौन? एल्सेस, है ना। एल्सेस एपोस्ट्रोफी एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एल्स जुड़ा के ये पॉजिटिव केस में चले गए। ओके तो हम कहा करते हैं कि एल्स यूज एज अ एडजेक्टिव, एल्स एडजेक्टिव की जैसा भी यूज होता है। कैसे? देखो कुछ और अगर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देखो आई हैव नथिंग टू एल्स, मेरा कुछ बोलने का नहीं है, मैं और कुछ नहीं बोलूंगी, है ना, मैं और कुछ और नहीं कहूंगी। ऐसा अगर हम बोले तो इसका एग्जांपल क्या होगा? आई हैव एडजेक्टिव के जैसा यूज होता है। देखो एडजेक्टिव के जैसा I have nothing, I have nothing, I have nothing else, I have nothing else to say, मेरा और कुछ बाकी नहीं बोलने का, है ना। I have nothing to say, nothing else to say, I have nothing else to say। देखो else, nothing, no, nothing else, ये किसकी जगह में यूज हुआ? दिस एडजेक्टिव क्लैरिफाई नाउन, है ना, नाउन को क्लैरिफाई किया, तो इज दिस यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ओके दिस इज यूज्ड एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के जैसा यूज हुआ ना। नथिंग एल्स, है ना, एल्स यूज किया तो ये हो गया एडजेक्टिव की एग्जांपल एज एल्स। एल्स एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है और कंजंक्शन भी है। ओके तो यूज ऑफ एडजेक्टिव हियर, else एज एन एडजेक्टिव। एग्जांपल क्या है? आई हैव नथिंग एल्स टू से, है ना, आई हैव नथिंग एल्स टू से, ऐसा भी जैसा ऐसा एग्जांपल हम यूज करते हैं तो ये एडजेक्टिव की जैसे यूज हुआ, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की जैसे यूज हुआ। देखो तो एडवर्ब, सबने लिखा एग्जांपल? हैव यू कॉपी डाउन दिस एग्जांपल? हैव यू कॉपी डाउन दिस एग्जांपल? Yes, ma'am. ओके देखो तो एडवर्ब की जैसा हम यूज करेंगे एज एन एडवर्ब, है ना। एडवर्ब की जैसे हम यूज करेंगे कैसे? एडवर्ब की जैसे हम यूज करेंगे एज एल्स को। एडवर्ब मतलब अन्य, दूसरी, ऐसा जो वर्ड होता है ना, जैसे अदर, अन्य, अदर तो होता है ना, हर किसी का And मीनिंग your अदर ही screen होता is है। not visible. Everyone, is the screen is visible to all? Yes, ma'am, ma'am. visible. Full screen. Yes. तो इट्स योर नेटवर्क मैम अब इशू। दिख रही है। हाँ चलो, तो यूज ऑफ एल्स एज एन एडवर्ब, एडवर्ब के जैसा भी साथ भी ये यूज होता है। ओके जैसे पॉजिटिव केस में we use else ऐसे एडवर्ब के जैसे भी हम यूज करेंगे। पॉजिटिव केस ऑफ एल्स जैसे हम यूज किया, एडवर्ब के जैसे भी हम यूज करेंगे। देखो अन्य, दूसरी, ऐसा कुछ हम अगर बोलने जाए एग्जांपल के थ्रू, ऐसा अगर कुछ बोले जाए कि अन्य, है ना, कि
देखो अगर बोलो कि ये यहाँ पे एनीथिंग मैम। एनीथिंग एल्स, एनीवेयर एल्स, है ना, ये सारा होगा। तो एग्जाम्पल अगर बोलूं कि ही कैन स्टे एनीवेयर एल्स, वो कहीं पे रह नहीं सकता। he can't he can't stay, he can't stay anywhere else। देखो एडवर्ब की जैसा यूज हुआ ना, हुआ कि नहीं बोलो। यस मैम। In the place of adverb we use else, adverb के लिए हम यूज किया anywhere else। he can't stay anywhere else, वो और कोई जगह पे रह नहीं सकता, है ना, ये एग्जांपल हुआ। ऐसे भी बहुत कुछ एग्जांपल लिखे हैं कि मुझे और किसी जगह में नहीं जाना है, I have not to go anywhere else, है ना, I have not go to anywhere else, I have not एक ज़्यादा भूख लगा बोलेगा, ये भी ज़्यादा भूख लगा बोले ना करे थी हम। माइक्रोफोन म्यूट करो। तो देखो आई हैव not to go anywhere else, है ना, ऐसा एग्जांपल है adverb। this is the example of adverb, this is the example of else as an adverb, है ना, adverb के एग्जांपल है कि I have, बोलो। मैम हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर एल्स, इसी सेंटेंस हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ ये एग्जांपल है, कॉपी करो कि आई डू नॉट वांट, डू नॉट ही बोला ना, आई डोंट want to go anywhere else, हाँ, this is the example of adverb, है ना, this is the example of adverb as an adverb, है ना, adverb के एग्जांपल है। तो देखो adverb else use as an adjective, use as an positive case, positive noun, and also use as an adverb, and also use as an conjunction। conjunction की वैसे जैसा भी यूज होगा else, ओके, conjunction की जैसा भी ये यूज होगा। देखो conjunction मतलब नहीं तो conjunction, what is the work of conjunction? conjunction connect two sentence या two word, है ना, दो सेंटेंस को या दो वर्ड को जोड़ता है conjunction। तो else भी यहाँ पे यूज होगा as an conjunction, conjunction की जैसा भी else यूज होता है। तो else is everything, else use as an positive noun, else use as an adverb, else use as an adjective, else use as an conjunction। तो हम conjunction के एग्जांपल देखेंगे। देखो मैम, बोलो। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। सबका स्क्रीन विजिबल है, इट्स योर नेटवर्क इशू, इट्स योर नेटवर्क इशू, है ना, मैम स्क्रीन इज विजिबल। हाँ तो इट्स योर नेटवर्क इशू। फिर से ऑफ
फिर से रिज्वाइन करो, है ना? मैम हाँ मैम मैं एक एग्जांपल बोलूं? बोलो। Anyone knows this question's answer or else? हाँ, anyone know this answer? Anyone? Know this question's answer or else? Anyone know this answer of else? हाँ, ये भी नहीं, एग्जांपल है निशान। एडवर्ब की। नहीं। एडवर्ब के एग्जांपल हो गए ना? नहीं मैम। can I tell an example? Okay, you can say Bonya. Yes, ma'am. Something else is wrong there. Something else is wrong here, है ना? तो Yes, ये ma'am. एडवर्ब की जैसा यूज नहीं हुआ है ना? नाउन की जैसे यूज हुआ, समथिंग एल्स इज रॉन्ग हियर, है ना? मैम मैंने नाउन की बोला जैसे यूज हुआ। मैम Okay. मैंने बोला कि anyone know this question's answer or else? Okay, anyone know this answer or else? Question's answer. Anyone know this question answer or else? Okay. हाँ, ये भी एग्जांपल ऑफ एडवर्ब है ना? एडवर्ब में else लास्ट में आएगा और कंजंक्शन एडजेक्टिव में else मिडिल में आएगा और पॉजिटिव केस में वो वहां पे आएगा और सामने आएगा, देखो, है ना? एनिमल से और एपोस्ट्रोफी एस यूज होगा पॉजिटिव केस में, एपोस्ट्रोफी एस होगा यूज एल्स के साथ। ओके, देखो तो कॉन्जंक्शन की यूज कैसा होगा? डू दिस एल्स आई विल बीट यू। तुम ये करो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी, है ना? दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो सेंटेंस को ऐड करते हैं कॉन्जंक्शन। कॉन्जंक्शन कनेक्ट टू सेंटेंस, टू वर्ड, टू पेजेस, है ना? कॉन्जंक्शन के काम ही है कि एक दूसरे को जोड़ना। तो एग्जाम्पल क्या होगा? तुम ये करो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी। तो देखो, डू दिस वरना मैं तुम्हें मारूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी। डू दिस एल्स, देखो एल्स मिडिल में आ गया, एल्स आई विल बीट यू। अगर तुम, है ना, आई विल बीट यू एक अलग सेंटेंस है, डू दिस भी एक अलग सेंटेंस है, मिडिल में एल्स ऐड होके देखो जोड़ दिया, है ना? डू दिस एल्स आई विल बीट यू, ये करो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी, है ना? दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्जंक्शन। कॉन्जंक्शन की एग्जांपल है, देखो अगर ऐसा बोल सकती कि वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल। अगर तुम नहीं पढ़ा तो तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, है ना? कॉपी डाउन दिस एग्जांपल एवरीवन। Done, ma'am. Which one, ma'am? ओके, हाँ तो हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं कॉन्जंक्शन की यूज करने में। देखो वर्क हार्ड, वर्क हार्ड और एल्स भी लिख सकते हैं और एल्स भी यूज कर सकते हैं ना, और एल्स यू विल फेल, यू विल फेल, है ना? यू विल फेल। ओके, वर्क हार्ड और एल्स, इसके जगह में हम इंस्टेड ऑफ और एल्स के जगह में हम एल्स भी यूज कर सकते हैं। वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, है ना? ऐसा भी बोल सकती कि पैसा बचाओ नहीं तो बाद में पछताओगे। पैसा बचाओ नहीं तो बाद में पछताओगे। पैसा बचाओ मतलब सेव मनी,
है ना। सेव मानी एक अलग सेंटेंस है, तो इसको हम जोड़ेंगे किसके साथ, एल्स देके। एल्स यू विल रिपेंट, यू विल रिपेंट, तुम बाद में पछताओगे अगर तुम पैसा सेव नहीं किया, है ना। ओके, सेव मनी एल्स यू विल रिपेंट। देखो एल्स से हम जोड़ दिया, है ना। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंजंक्शन। देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट अदर प्लेस, है ना। यहाँ पे है व्हाट अदर प्लेस, यहाँ पे है व्हाट अदर प्लेस, तो इसके जगह हम यूज करेंगे वेयर एल्स। Ma'am, I speak one example. ओके, ओके, ओके। देखो तो व्हाट अदर प्लेस कैन वी गो टू, कौन सी जगह में तुम जाना चाहते हो। देखो व्हाट अदर के रीराइट हटा के, व्हाट अदर प्लेस हटा के वेयर एल्स यूज किया, है ना। यहाँ पे व्हाट है इसलिए साम नहीं यूज किया, है ना, एनी नहीं यूज किया, है ना। तो वेयर एल्स कैन वी गो, कौन सी जगह में हम जाएंगे। देखो else can we go, he has he any other thing to say। देखो ये सारे का सारे क्वेश्चन वाले, क्वेश्चन मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये दो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऐसे यूज होता है has वर्ब से, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब उससे स्टार्ट होता है ना, या रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो इसीलिए व्हाट अदर प्लेस कैन वी गो टू, तो इसके इंस्टेड ऑफ दिस वी रीराइट वेयर एल्स कैन वी गो, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम कहाँ जाएंगे, है ना। हैज ही एनी अदर थिंग टू से, उसका और कुछ बोलना बाकी है क्या। Has he anything else to say? देखो has he anything else to say? All other people have gone, सारे का सारे people चले गए। तो देखो all other people के instead of all other people we use everybody या everyone, दोनों भी हम यूज कर सकते हैं, दोनों के दोनों हम यूज कर सकते हैं। everybody या everyone else has gone, everybody या, है ना, ये हम यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यू मस्ट सी सम अदर पर्सन, यू मस्ट सी सम अदर पर्सन, इसको क्या लिखेंगे हम, बोलो, टेल मी। यू मस्ट सी सम अदर पर्सन, some other, instead of some other person we use anyone else, है ना। you must see anyone else या someone else, है ना। you must see someone else, है ना। other person की instead of other person we can rewrite this sentence, you must see some other person, है ना। ये होगा कि नहीं होगा, बोलो। Clear to all? Yes, ma'am. Is this clear to all? Have Yes, you ma'am. written in this? Okay. तो No, ये ma'am, मैं no, होमवर्क ma'am. देती हूँ सबको, ये होमवर्क देती हूँ। देखो यहाँ से होमवर्क, rewrite the sentence। यहाँ से कहाँ तक देंगे, मैम पूरी एक्सरसाइज। यस। पूरी एक्सरसाइज मैंने होमवर्क दे दिया, यहाँ तक करना, मैम। ओके।
यहाँ तक, ओके? Okay, ma'am. और ये जो पॉइंट टू रिमेम्बर है, ये मैं पढ़ा देती हूँ, देखो। पॉइंट टू रिमेम्बर, क्या हमें याद रखना है एल्स के बारे में? वी कैन यूज ए कॉमा बिफोर और एल्स। देखो, वी कैन यूज, हम यूज कर सकते एल्स की आगे, बिफोर एल्स वी कैन यूज अ कॉमा एंड वी कैन यूज ए सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है? हाइफन को बोलते हैं सेमीकोलन, इसको बोलते हैं, है ना, सेमीकोलन। दिस साइन इज कॉल्ड सेमीकोलन, है कि नहीं? Yes, ma'am. This sign is called semicolon and this is called comma. So we can use before or else comma. Comma हम use कर सकते हैं. We can use a semicolon और comma before otherwise. ये otherwise की पहले हम semicolon और comma use कर सकते हैं और else के पहले और else के पहले हम comma use कर सकते हैं. ये जो sign है वो हम use कर सकते हैं. ये यहाँ पे हमें याद रखना है. Okay, clear? चलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ये जो सारे के सारे एक्सरसाइज है इस पेज नंबर 61 में एक्सरसाइज, बस एक्सरसाइज बोला है ना, यूज नहीं बोला, एक्सरसाइज 10 तक करके आना, ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, हाँ. Okay, ma'am. बाय बाय एवरीवन, आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय. Bye, ma'am. Have a nice day. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय एवरीवन. Bye, ma'am.